غلام احمد کا شرف سماعت حاصل کرنے اور جزاک اللہ کا صلہ پانے اور اس خطے کو خود لے جانے کے بعد کسی کو حق ہی کیا پہنچتا تھا کہ اس پر اعتراض کر کے اپنی کمزوری ایمان اور قلت قرآن کا ثبوت دیتا۔ الفضل جلد 32 نمبر 196 مورخہ 22 اگست 1944 صفحہ 6 کالم 1۔ آگے لکھتے ہیں، یہ ان لفظ لکھیں، یہ شعر خطبہ الہامیہ کو پڑھ کر مرزا غلام احمد کے زمانے میں کہا گیا اور ان کو سنا بھی دیا گیا اور چھاپا بھی گیا۔ اور آگے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ یہ، اب وہ خود کہہ رہے ہیں، اس سے واضح ہے کہ یہ محض شاعرانہ مبالغہ آرائی نہ تھی بلکہ ایک مذہبی عقیدہ تھا اور ذلی بروزی نبوت کے اعتقاد کا وہ لازمی نتیجہ تھا جو مرزا غلام احمد کے خطبہ الہامیہ سے ماخوذ تھا، اور مرزا غلام احمد نے بذات خود اس کی نہ صرف تصدیق بلکہ تحسین کی تھی۔ خطبہ الہامیہ کی جس عبارت سے شاعر نے یہ شعر اخذ کیے ہیں وہ یہ ہے، مرزا غلام احمد لکھتے ہیں، جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت 6000 سال سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ 5000 سے تعلق رکھتی ہے، بس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا، بلکہ حق یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6000 کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوی اور اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، اس لیے تلوار اور لڑنے والے گروہ کی محتاج نہیں، اور اس لیے خدا تعالیٰ نے مسیح کے بعثت کے لیے صدیوں کے شمار کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بدر کی راتوں کے شمار کی مانند اختیار فرمایا، تاکہ یہ شمار اس پر جو ترقیات کے تمام مرتبوں سے کمال تمام رکھتا ہے دلالت کرے۔ خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 271 مطبوعہ 1902 ربوہ۔ جی اس کے آگے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد کا بروزی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جانا خود مرزا غلام احمد کا عقیدہ تھا، جسے انہوں نے خطبہ الہامیہ کی مذکورہ بالا عبارت میں بیان کیا۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے قاضی اکمل نے وہ اشعار کہے اور مرزا غلام احمد نے ان کی تصدیق و تحسین کی۔ ہر شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر آگے لکھا ہے، پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو آگے انہوں نے خود ہی نا بڑھ سکتا ہے، یہ تو ان کے اپنا خیال ہے نا۔ نہیں آگے وہ حوالہ بھی دیتے ہیں۔ جی جی نہیں حوالہ ہوگا جی، وہ جی یہ تو ایک تاریخی فیصلہ تھا، وہ حوالوں کے بغیر کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ جی جی آگے سنیں، حوالہ آ رہا ہے، پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ مرزائی صاحبان کا عقیدہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ صرف مرزا غلام احمد ہی نہیں بلکہ ہر شخص اپنے روحانی مراتب میں ترقی کرتا ہوا معاذ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ مرزائیوں کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود کہتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ اسے نہیں مانیں گے لیکن یہ ان کے انہوں نے، یہ میں نے ان کا پڑھا ہوا ہے خلیفہ دوم صاحب کا۔ ہاں یہ بالکل سنا رہے، صحیح، دوسرے لوگ سن رہے ہیں۔ ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ الفضل قادیان جلد 10 نمبر 5 مورخہ 17 جولائی 1922، عنوان خلیفہ المسیح کی ڈائری۔ آگے ان کے کمنٹس ہیں، یہیں سے یہ حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ مرزائی صاحبان کی طرف سے بعض اوقات مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اس کی اصلیت کیا ہے؟ خود مرزا غلام احمد اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ حوالہ آ گیا جی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ جل شانہ نے آن حضرت یہ مرزا غلام احمد کے لفظ ہیں، اللہ جل شانہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افادہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی، اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے۔ وہ تو ہم نے بات کر لی کیسی اتباع کی۔
जी वो जी आपकी तवज्जो रूहानी नबी तराश है, और ये कुव्वत कुदसिया किसी और नबी को नहीं मिली। हकीकतुल वही सफ़ा नंबर 97 1974 वाले एडिशन में हाशिए में लिखा है। ठीक है। आगे सुने। जिल और बुरुस के मज़कूरा बाला एतकादात के साथ मिर्ज़ा साहब के नज़दीक खातमुन नबीयीन का मतलब ये है कि आपके पास अफाजा कमाल की ऐसी मोहर थी जो बिल्कुल अपने जैसे बल्कि अपने से भी अफसल और आला नबी तराशती थी। और इस पर उन्होंने ये लिखा है, ये और बात है कि खुद मिर्जा गुलाम अहमद के इतराफ के मुताबिक इस अजीम शान मोहर से सिर्फ एक नबी तराशा गया, वो मिर्जा गुलाम अहमद थे। फरमाते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद का कोट है, अब इस हिस्सा कसीर वही इलाही और अमूर गैबिया में इस उम्मत में से मैं ही एक फर्द मखसूस हूँ, और जिस कदर मुझसे पहले औलिया और अब्दाल और अक्ताब इस उम्मत में से गुजरे हैं, उनको ये हिस्सा कसीर इस नेमत का नहीं दिया गया। बस इस वजह से मुझे ही नबी का नाम पाने के लिए मखसूस किया गया हूँ। हकीकतुल वही सफ़ा 391। आगे उनका कमेंट है, ये लिखते वक्त मिर्ज़ा गुलाम अहमद को ये ख्याल भी ना आया कि खातमुन नबीयीन जमा का सीगा है, लिहाजा अरबी ग्रामर के मुताबिक कम से कम 3 नबी तराशे जाने चाहिए थे। बिल्कुल दुरुस्त बात। बिल्कुल ना देखो ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। हाँ दुरुस्त हैं? बात। हाँ जी हैं? एक नाल नहीं हाँ एक चलदी नाम नहीं बनता, यहाँ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਆਣਗੇ। ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਫਾ ਨੰबर याद रख लो, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ सफा नंबर है जी, मैं आपको बता दूं, आप इसका 2 3 4 5 6 1906 1906 पेज नंबर। अच्छा 109 906 ये असेंबली की कार 1096 नहीं 1906 1906 हाँ ठीक 1906। हाँ 1906 हाँ ठीक है। तो आगे लिखते हैं, ये मुफ्ती महमूद साहब ये पेश कर रहे हैं इत्तलाए। जी जी कुरान और हदीस लुग़्ते अरब और अक्ल इंसान के साथ इस खुले मजाक की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह ताला के मबूद वाहिद होने का मतलब ये है कि कायनात आलम में वो तन्हा ज़ात है जिसकी कुव्वत कुदसिया खुदा तराश है, वो और अपने जैसे खुदा पैदा कर सकती। सुन लो जी, कहते हैं कि जे रसूल पाक दी सील नबी पैदा कर सकती है तो अल्लाह का को बड़ी सील है। जरा गौर करना, अगर कुरान करीम की आयात और उम्मत के बुनियादी अकायद के साथ ऐसी गुस्ताखाना दिल लगी करने के बाद भी कोई शख्स दायरा इस्लाम में रह सकता है, तो फिर रूए ज़मीन का कोई इंसान काफिर नहीं हो सकता। नहीं, ये मुझे जो उन्होंने ये कहा है कि जी वो अल्लाह ताला अपने जैसा खुदा पैदा, ये मिर्जा साहब ने लिखा है कहीं? नहीं, ये मुफ्ती महमूद साहब, ये मुफ्ती साहब का उनका कमेंट है ना, वो जो मर्जी का। हाँ ठीक है। नहीं मिर्जा साहब ने तुसी खुदाई दे दावे पढ़ के सुनावा। नहीं मैंने पढ़े हुए हैं, मिर्जा साहब ने तो उसके नहीं एक दावा सुन लो, हाँ मेरी चलो तसल्ली हो जाएगी। सुनाओ। एक दावा उससे मुझे बड़ी उसके बारे में ना, क्या? एक जो कहते हैं ना परप्लेक्शन होती है ना आदमी को। हाँ देखे ना, आपसे बात होती है, बात भी हो जाती है, दिल भी खराब नहीं होता। तो ये सुने जी, ये मुझे निकालने दे, अभी निकल आएगा। ये मेरा बड़ा फेवरेट किस्म का ये है। देखे मैंने जिंदगी के कितने साल इतनी किताबों को पढ़ने में गुजारे होंगे, मैंने अल्लाह माफी दे। मैं सोचना मैं अपने नाल की करता। डॉक्टर साहब तुसी माशाल्लाह जन्नत कमाई है, अल्लाह ताला तुहानू जिंदगी दे, जज़ाकल्लाह खैर। ये एक मिनट, हाँ जी ये मिल गए। ये जी इनमें एक दो तो ऐसे हवाले हैं ना कि मैं कहता हूँ बहुत कमाल के हैं जी। और मेरा ख्याल में मैंने पढ़े हुए हैं, लेकिन आप बताएं। नहीं आपने तो पढ़े होंगे, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। हाँ लें जी, ये हवाला है रूहानी खजाइन जिल्द 20 है, सफ़ा नंबर 404 है। किताब का नाम तजल्लियात इलाहिया है। तो आपने इस बारे में बताना है कि आपकी क्या राय है। जब मैं ये पढ़ता हूँ ना
तो फिर मैं दरमियान में छोड़ देता हूं कि छड्डो पर की पढ़ के करना है। यहां लिखा है, मैंने इस जगह तक मजमून को ख़त्म किया था कि आज फिर 15 मार्च 1906 को बरोज़ पंचशंबा वक्त सुबह ये इल्हाम हुआ। खुदा निकलने को है। अब ये इल्हाम के लफ्ज़ हैं जी, खुदा निकलने को है। हाँ ठीक है। आगे अरबी ज़बान शुरू हो जाती है, चूंकि मुझे थोड़ी बहुत आती है तो मैं पढ़ देता हूँ। अंता मिन्नी बेमंज़िलती बरूज़ी, हाँ तू भी मेरी तरह का बरूज़ी खुदा ही है, मेरे जैसा ही है बरूज़ी तौर, यानी कि तू भी बरूज़ी खुदा। अंता मिन्नी बेमंज़िलती बरूज़ी, ये अल्लाह ताला कह रहा है जी, तू भी मेरी तरह का तो खुदा ही अल्लाह है, ताला का बरूज़ी। बरूज है मतलब। हाँ अल्लाह का बरूज है, बस ऐसा। हाँ। वाद अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है। हम्म, इन्ना वाद अल्लाह ला युबद्दे, अल्लाह ताला यकीन, और यकीनन अल्लाह अपना वादा तब्दील नहीं करता। ठीक है। आगे ये इल्हाम हो गया। आगे लिखा है, यानी खुदा इन 5 जल्जलों को लाने से अपना चेहरा जाहिर करेगा। चलो ठीक है जी, हो सकता है जल्जलियां का जिक्र होए तो खुदा की जरूरत होए। आगे देखो, और अपने वजूद को दिखला देगा। यहां तक अगर रहता ना जी तो मैं सोच में पड़ जाता कि पता नहीं की मतलब है। आगे सुनो, आगे इल्हाम के लफ्ज हैं, और तू मुझसे ऐसा ही है, ऐसा है जैसा मैं ही जाहिर हो गया। दोबारा पढ़, तू मुझसे ऐसा है जैसा मैं ही जाहिर हो गया। आपने एक हदीस लानी है, ज़ईफ मतरूक जे हो जाई हुए, जिस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हुए कि अल्लाह ने मैनू किया अंता मिन्नी बेमंज़िलती बरूदी, आगे ए लफ्ज बेशक ना हो वाद अल्लाह, इन्ना वाद अल्लाह ला युबद्दल, लेकिन ये लफ्ज जरूर हो कि तू मुझसे ऐसा है जैसा मैं ही जाहिर हो गया। और आगे देखें, ये इल्हाम के लफ्ज हैं जी, यानी तेरा ज़हूर बऐन ही मेरा ज़हूर है। ऐ तुसी फतवा देना है। देखिए ये मैंने सारे पढ़े हुए हैं। अंता हाँ, मिन्नी नहीं नहीं, बेमंजिलत हुण तुसी मैनू औलादी। समझाओ ना थोड़ा जिन्ना। अंता मिन्नी बेमंजिलत औलादी, ये भी उनका है कि तू नहीं नहीं, वो मुझसे तो मेरी 7-8 औलाद ने, वो तो मैंने सारे आंदे हैं। वही ना। तो ये इसका यही मतलब है कि जो अल्लाह ताला का मुरसल होता है वो उसका अल्लाह ताला का ज़हूर होता है, उसका आना। तो ये इसमें तो उसमें खुदाई का दावा तो कोई नहीं। अच्छा मैं है इसको कोई इस नहीं? तरह समझता हूँ। नहीं नहीं, देखो तुसी मां दा मतलब कुछ और मेरा समझते मतलब हो, है कोई इत्थे पेशाब साडा पखाना मतलब करने वाला शख्स खुदाई का दावा कर ही नहीं नहीं, सकता। ये तो एक वैसे गल ये तो फिर जाहिर है कि इससे ये नहीं, मुराद है ही नहीं है। तारिक साहब एक हाँ जी। छोटी जिन्नी अर्थ है। हाँ चलो कुरान ताड़ी अरबी जुबान नहीं, नहीं। बातर तवीला है वो, हाँ मतलब इत्थे भी वही कुछ, यानी हाँ, कि तो मिर्जा जाहिर गुलाम है अहमद इल्हाम च अगर भी एक वही। शख्स ये बात करे और वो खुद बता भी रहा है कि इसका क्या मतलब है। क्या मसलन कितने दस, नहीं देखे कितने ना। दस है? हाँ नहीं, उन्होंने मसलन एक दफ़ा एक जगह उन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे कि मैंने देखा कि मैं खुद खुदा हूँ और मैंने ज़मीन और आसमान पैदा किए। नहीं नहीं, मैं हवाला काट हाँ, देना जी ठीक है ताकि ना। कोई। तो उसके भी नीचे उन्होंने लिखा हो कि इसका ये मतलब है कि जब अल्लाह ताला को मुरसल आता है उसके आने से एक नए ज़मीन नए आसमान पैदा किए जाते हैं रूहानी नहीं नहीं, तौर पर। ए सवाल लेते ना, देखो ना, तेरा ज़हूर बऐन ही मेरा ज़हूर है, ये खुदा हाँ का वादा है। हाँ बिल्कुल। हाँ इसका मैंने भी ये सारे पढ़े हुए हैं और मैंने इससे यही मतलब लिया है कि खुदा नहीं नहीं, ताला के मतलब ना मुरसल के करो जरिए मतलब। खुदा ताला का ज़हूर होता है। अच्छा, और देखें फिर फिर आपने ये जो शेर पढ़ा है ना कि वो आए हैं उतर आए और है पहले से शान में, तो ये अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम आ रहा है तो ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वो बरूज है ना, उसका आना। अच्छा, फिर एक हजरत हवाला मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम का नहीं, जो खलीफा आता है वो एक हजरत मिनट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना है। तारिक साहब, एक मिनट, जी यही गल है ना। हाँ ते ओ खलीफे ते एक मेरे को एक हवाला है, तो मैनू तुसी 1 सेकंड दो। हाँ ए हवाला मैं बड़ी जल्दी कट लेना उन्हें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं लफ्ज बोलूं और उसमें दाएं बाएं हो जाए। हाँ नहीं वो अच्छी बात है आपके यहाँ तो हैं? ज़्यादा तो फायदा होता है सुनने वाले का भी और हमारा भी फायदा हाँ, होता ये देखें जी, ये हवाला मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर ये अभी मुझे मिल जाएगा, ये हवाला मलफूजात का है। है। जी वहाँ पर लिखा हुआ है हम्म। कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद के आने के बाद हाँ हर चीज़ का मतलब कुरान पाक के साथ उनकी वही को भी मिलाया जाएगा।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਇਹ ਹਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ صفحہ نمبر 141 ملفوظات کا والیوم 5. اب یہ دیکھیں، یہ نیچے فٹ نوٹس ہوتے ہیں نا، وہاں پر لکھا ہوا ہے، فرمایا یہ بڑے ابتلا کا مقام ہے، میرا مذہب تو یہ ہے کہ جب تک درخشاں نشاں اس کے ساتھ بار بار نہ لگائے جائیں تب تک الہامات کا نام لینا بھی سخت گناہ اور حرام ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن مجید اور میرے الہامات کے خلاف تو نہیں ہے۔ ہن دیکھو قرآن مجید دے نال انہاں دے الہام بھی شامل ہیں، اس تے ذرا تبصرہ نہیں دیکھیں، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب ایک ملہم من اللہ تھے اور ان کو الہام ان کے ساتھ وحی میں بات کرنے والا وہی خدا تھا جس نے قرآن مجید کو بھی شائع کیا، بھیجا، نزول اس کا نزول کیا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ جس نے قرآن بھیجا وہ حضرت مرزا صاحب کو کوئی ایسی وحی تو نہیں کرے گا جو قرآن کے خلاف ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کا مفہوم جو ہے وہ اس میں مرزا صاحب کے الہامات کا بھی ہے کہ ان کا کیا مفہوم صحیح ہے۔ جیسے مرزا صاحب نے کا یہ دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں قرآن کا سب سے زیادہ علم مجھ کو دیا گیا ہے، تو یہ علم انہوں نے ذاتی مطالعے سے اتنے حاصل کیا، ان کو الہامی طور پر یہ ملا ہوا۔ ہاں، تو مطلب جو رسول پاک کو نہیں دیا گیا؟ نہیں، بالکل رسول پاک کو بھی دیا اس میں۔ اچھا، تو آپ نے ایک حدیث دکھانی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تیرا ظہور بعین ہی میرا ظہور ہے، انت منی بے منزلتی بروزی، آپ نے انت منی بے منزلتی ولدی، انت منی بے منزلتی آپ کی براڈ گر گئی۔ ایک سیکنڈ ذرا، میں نا بندے اٹھا لوں گا، کوئی مشکل نہیں۔ حیدر بھائی تسی بولو، میں بندے چک لاں ذرا۔ چوہان صاحب ویکھو ہے جی تو چکو نا۔ جی چوہان صاحب منوں تے نہیں لگدا ہن واپس آن گے۔ نہیں، چوہان صاحب نے بہت صاحب نہیں آئے واپس انشاءاللہ۔ نہیں، چوہان صاحب جو ہیں وہ دل کے برے آدمی نہیں ہیں، وہ ہم نے انہیں بڑا ٹارچر دے دیا آلریڈی، ہن وہ بس ہاں ہاں کردے سن تے چلے گئے نے، ہن کوئی گل چوہان صاحب ہوتا نا اون چوہان صاحب ایتھے بیسیکلی نا مرزائیاں نوں لتر پوان آئے سن تے لگدا ہے۔ دیکھیں، میرا دل کرتا ہی نہیں میں چوہان صاحب کو تکلیف پہنچاؤ، میں نے تو ان سے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو باتیں ہوں گی، نہیں تو نہیں ہوں گی۔ صاحب آپ کو طلعت صاحب کی براڈ پہ، علیم صاحب کی براڈ پہ جانا چاہیے، آپ جیسے بندوں کی ہمیں ضرورت ہے جن کے آگے یہ کچھ بول نہ پائیں۔ ایسے حوالے آپ نے ایسے
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਿੱਤਰ ਭਿਓ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ और पप्पू ने नहीं, नहीं, नहीं। इनको उधर तुम्हें नहीं पता यार, तुम नहीं आया, तुम्हें नहीं पता, डॉक्टर साहब तारे- बता रहे हैं। डॉक्टर तारक साहब साहब जो आपने है ना, तो उनको पानी भी नहीं पीने दिया। नहीं, तारक साहब के बारे में ये बात ना कहें। तारक साहब जो है ना, वो साहब की बात पता कर नहीं- रहे जो भी नीचे कादियानी सुन रहे थे, जो तड़प रहे थे, जो चीखें उनकी निकल रही थी, वो उनको उनके पास कोई जवाब नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर इतना ही तड़प रहे थे तो वो रहमत बाबा जब ऊपर आया था तो इंसानों की तरह बात करता था डॉक्टर साहब से, तो मना किया था किसी ने? नहीं, रहमत बाबा ने एक दफा मुझसे बहुत बदतमीजी की थी मेरी भाई, ब्रॉड ये पे। अच्छा उसने किया, आपको ये आवाज नहीं आई किसकी है? उसको। मैंने सुन लिया था उसको, आज भी उसने की है, लेकिन बात ये है कि अगर जवाब देना है तो फिर जवाब इंसानों की तरह देना है ना। अब ये जो है चौहान साहब भी तो जवाब ही दे रहे थे ना। हाँ, नहीं, चौहान साहब जो है वो दिल के अच्छे आदमी है। हमारा इख्तलाफ है अकायद पर। अब ठीक है, अपनी जगह उनका अपना अकीदा, हमारा अपना अकीदा, वो चौहान मतलब साहब आप सुन रहे हैं तो मेरी माजरत कबूल करें। मैं तानू क्या सी मेरे नाल गल ना करना अकायद पे। नहीं आज थे मुश्किल नहीं। ये अपना हैदर भाई, ये बात करना, ये फैजी किस कौन है आईडी जरा, फैजी के रजे ये क्या नाम है, फजान की क्या? अफजाल। हाँ जी अफजाल साहब माइक ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम अफजाल साहब, माशाल्लाह ये तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त भाई हैं। सर मैंने आपकी पूरी ये सुनी है कन्वर्सेशन। आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट यू आर बेगिंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल्स। ये बता दो आपको मैं कि इस मैं इनको, चलो आपकी मैं इज्जत करता हूँ तो आपकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं भी इन्हें को बुरे लफ्ज़ से याद नहीं करता, मगर इट्स टोटली absurd टू थिंक। नहीं, तारक साहब मुख्तलिफ हैं। तारक साहब में बहुत चलो ठीक है, पोटेंशियल मैं है। मान रहा हूँ आपकी बात, मैं मान रहा हूँ, बट इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड अनएथिकल टू इवन बिलीव इन दिस कि कोई भी बंदा, हमारा तो ये ईमान है, कोई भी बंदा माँ सिवाय नबियों के, वो नबियों का मामला है आपस में, वो उनके हम जिम्मेदार नहीं है, सच्चे नबियों के, झूठे मक्कारों का नहीं, जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ सकता है। ये हमारा ईमान है। और मेरी बात सुन लीजिए एक, कि हम हर अजान के बाद जो दुआ मांगते हैं वो किसके लिए मांगते हैं और किस चीज़ के लिए मांगते हैं। हर अजान के बाद मुसलमान पर, मतलब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम अंबिया में से एक रसूल को हौज़े कौसर पर खड़ा करेगा, ठीक है, और उस हौज़े कौसर पे खड़ा होने चौहान के साहब बाद आ गए चौहान साहब, डॉक्टर साहब। ठीक है, मेरी बात पूरी होने दें, फिर उनको लीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इनके साथ सर खपाऊं। मकसद ये कहने का है कि वो हौज़े कौसर पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कह के गए हैं कि वो मैं ही होऊंगा। लेकिन मुसलमानों, जब आज़ान होती है, ख़त्म होती है, उसके बाद मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ किया करो, ताकि मैं उस जगह पर फायज हूँ, और जो मेरे लिए दुआ करेगा मैं उसके लिए रहमत का वो करूंगा। इसका मतलब है कि अगर ये मिर्जा जैसा भी है, घटिया इंसान है, कुछ भी है, नहीं, जरा तारिक साहब यहाँ बैठे हुए हैं तो वो ठीक है, वो बैठे रहे, मुझे नहीं परवाह उसकी। मकसद ये कहने का कि देखिए, इसको ये एक बड़ा ऊंचा मकाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कोई ऊंचा मकाम वाला वहां फायज नहीं नहीं, होता? नबी नहीं आ सकता अफजाल साहब, ऊंचा नीचा मकाम ही छड़ दो। थेरी को तो मकसद ये कहने का कि ये ऊपर का आदमी, नीचे का आदमी, और हरकतें उसकी ऐसी है कि काजी यार भी ना बख्शे उसको। ना कोई नहीं, अभी इस बुत को रहने दें। आज वैसे ही मुझे डर पै गया। तारक साहब है ना कहन कि जिथे आंदा है ना है बंदा, मैनू उत्थे ना बिठाना, मैं नहीं चाहता है आगे। क्यों तारक साहब क्या हाल है? आप वापस तशरीफ लाए माशाल्लाह। वो एकदम बंद हो गया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, नहीं वो ब्रॉड गिर जाती है ना ज्यादा देर चले। तो चले आखिरी वाला ये बता देता हूँ और फिर हम आपका रहने देते हैं बाकी सब। तो ये देखें, ये वही है जो आपने कहा था कि हम एक नया निजाम और एक नया आसमान और नई जमीन चाहते हैं। सो मैंने पहले तो रहमत बाबा अगर बात करनी है तो ना उसको रहमत बाबा को रहने दे, उसने गाली तमीज नहीं आया उतना गल नहीं हो सकती इस तरह ना। हाँ, वो आदमी जो है ना तमीज वाला नहीं है। ठीक है, तुसी करो जी। हाँ, तो बस ये आपको मैं एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता था, ये मुझे बड़ा तंग करता है जी। सूरह अल मुल्क है ना, हाँ जी, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु। उसमें एक आयत है, वलाक़द ज़य्यनत समाअद दुनिया बिमसाबीहा, ठीक है ना?
जी बिल्कुल। यहाँ पर उन्होंने वो आयत लिखी है, आपने गौर किया कभी इस बात पर? यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ, हाँ ठीक है। हर वो आयत जो है ना, वलाकत ज़य्यना समा हाँ, दुनिया हाँ, बेमिसाब, उन्होंने उसको बदल दिया है, लफ्ज़ी तहरीफ कर दिया है, कहा अच्छा। कि इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बेमिसाब, वलाकत निकाल के इन्ना डाल दिया। बस इस बारे में कोई फतवा जारी करे। फतवा राय को कहते हैं, मैं किसी और मैनों में नहीं, हाँ, मुझे आपकी फतवा समझ आ अरबी रही का है। लफ्ज़ है, इसका मतलब राय देना होता है। हाँ। लोग पता नहीं इसको क्या क्या समझते हैं। नहीं मैं अब देखे ना, मैं वो पढ़ूंगा तो फिर मैं इसके मुतल्लिक अपना इजहार ख्याल कर सकता चलो हूँ। गल खत्म हो गई, हुण दोस्ती वालियां गल्लां करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ नहीं, बड़ा देखिए, खौफ पै गया है तारिक साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ मुश्किल जितनी ਨਾਲ हमारी ताल्लुकात बात हुई बनाए। है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बड़ा फायदा हुआ है। अपना डॉक्टर साहब, ये तारक साहब हमारे पक्के कहते हैं ना, पक्के गाहक ने, पक्के पक्के वो नहीं साहब नहीं हैं। नहीं, मैं तारिक साहब ना मैं बड़ा ही एहतियात करना है। मैं तारिक साहब यकीन करो, अल्लाह जानदा है मैं बड़े डर डर के ये गल्लां तुहानू दसियां ने। हाँ नहीं नहीं, वो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मेरे अकायद से वाकिफ है, मैं आपके अकायद से वाकिफ हाँ हूँ। जी बिल्कुल। तो आपने अपने अकीदे का इजहार करना और उसका आपको हक है, इसमें डरने की क्या बात है, और ना गुस्से की बात है इसमें। मतलब एक शख्स को आप दज्जाल और काजिब समझते हैं तो आपका वो अपना अकीदा है, इसमें क्या बात है? अगर आप उसका इजहार भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, पीर साहब भी आए हैं, अगर उनको मेरा मौका मिला हाँ, तो आप इन नहीं पीर साहब को, पीर साहब ने बुलाओ ना, पीर साहब मतलब है मेरे को। चलिए, पीर ठीक है, साहब ऊपर पीर बैठे से हुए फिर हैं। बात करें। और कौन से डॉक्टर पीर अस्कानी मैंने साहब? आपको अस्सलाम टेलीफोन वालेकुम करने पीर की साहब। कोशिश की थी, तो किसी वक्त हम कर लें बात फिर टेलीफोन पे भी, जब आपके पास टाइम हो। क्या कहा आपने? मैंने कहा आपको मैंने कॉल भी करने की कोशिश की थी इससे पहले, तो अच्छा। किसी वक्त फिर आपके पास जब टाइम हो तो फिर कर लें मुझे भी कॉल। हाँ मैं कर लूंगा आपको कॉल इंशाल्लाह। तो आपका मैं बहुत मशहूर हूँ। आप नहीं नहीं तारक साहब, मेरा दिल ने ना हार्ट सिंक्स हो रहे सन। हाँ। जो आदमी इखलाक वाला हो, हाँ। पता नहीं क्या बात है कि मुझे वो फीलिंग नहीं आती कादियानियों वाली जब मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी वजह है कि अब देखें, वो रहमत बाबा वो आते ही गालियां शुरू कर देता है। अभी नहीं अगले अब की पता सुन क्या तो- करें उनका। हाँ, उन्होंने एक दिन तो गालियां क्या बहुत ही हाँ। कमाल कर दिया, मैंने रिकॉर्ड करके किसी और को भेज दिया। मैं कह लो भी है कादियानी जे। हाँ है कादियानत भाई जी। चौहान साहब दलील खत्म हो जाए ना, फिर गाला ही रह जाए। हाँ। भाई नहीं, देखें, इख्तलाफ है तो अगले की बात सुन तो लें। तमीज से सुने, आराम वो से क्या बात करें। दलील दे रहा है वो भी सुन लें। चलें, हाँ। आप ना नहीं मानो, मनना ना मनो, ना मानो, वो तो कोई मसला ही नहीं है। को हाथ थोड़ी पड़िया हुआ है। हाँ तो वो तो बिल्कुल आप वैसे बात भी गायब से हो रही है। हाँ हाँ। और ये तो दूसरी बिल गैब वाली बात है। आप एकेडमिक आदमी हैं और इल्मी गुफ्तगू करते हैं, इल्मी तौर पर दलाइल पेश करते हैं, और मुझे बड़ा लुत्फ आता है और मुझे भी गौर का मौका मिलता है। तो यही तो मज़ा आता है कि जब इल्मी गुफ्तगू होती है, आदमी दोनों तरफ, सवाल करने वाले को, जवाब देने वाले को, दोनों को ही फ़ायदा होता है। हाँ ना, इसमें मतलब जब आपका इर्तिकाद एक बड़ी मुद्दत हाँ। से हो, हाँ और बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस्लाम भी छोड़े, मैंने उनको देखा है, बड़े उनके पता नहीं क्या उनके दिल में आया। और देखें, बात मजहब के साथ एक बड़ी स्पेसिफिक बात है। हाँ ये जो अक्सर कादियानी जो ग्रोह के लोग हैं ना, जी जी ये मुल्हिद हैं। हाँ, मुझसे बात करते ही 2 मिनट में आपको पता लगता पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल। हाँ। सैयद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम पीर साहब, मैंने ठीक है, आपको जज़ाकल्लाह सलाम अर्ज की थी, आप फरमाएं, अब आपकी बारी। मैं तो बोल बोल बहुत थक गया आज। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था, देखने वाली बात ये है कि वो तलत जी है ना, तलत जी, उनके ग्रुप जी। में गुफ्तगू चल रही है जिस तरह से, जो क्या कहा जाए, आप जाकर सिर्फ देख लें, ऐसा वो लगता मछली है मंडी वाले पीर साहब, पागलों का एक मजमा लगा हुआ है। और मैं हैरान हूँ, हमारे भाई अमर नजीर साहब एक बहुत ही नफीस इंसान है। वो टिकटॉक की दुनिया में मेरे ख्याल में कुछ होशो हवास को बैठे हैं अपने। आप जाकर हालत तो देख लें, क्या कर रहे हैं वो इतने आमिर वो- नजीर साहब का एक अपना स्टाइल है। मैं तो उनको उस वक्त से सुन रहा हूँ जब मतलब एक अरसा हो गया, जब मुझे पता भी नहीं था कादियानियत क्या है। तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो नहीं, मतलब बाज लोगों को उससे थोड़ा इख्तिलाफ होता है, लेकिन नहीं ठीक डॉक्टर ही है। साहब, मैं पीर साहब से एग्री करता हूँ। जब वहाँ पे वो बदतमीजी करना शुरू हो जाए, गालम गलोच, मैं भी उधर ही था,
मैं आधा घंटा पहले आके इधर खड़ा हूँ, मैंने कहा लानत भेजो यार, गालियां सुननी है, नहीं, इससे गालियां बेटर है वो नीचे उतर आए। अपना पीर साहब डॉक्टर साहब ने दिखाना है कि इनके अंदर क्या है, कादियानियों के अंदर वो भी तो दिखाना है, दिखाएंगे तो पता चलेगा ना। भाई अली साहब मेरी बात सुन लीजिए, आमिर साहब को मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, कादियानियत पे बहुत ही उनको गिरफ्त है, शायद किसी को उन जितना इल्म हो कादियानियत के बारे में, शायद, ये मेरा मानना है। लेकिन जितना मैंने उनको सुना है व्हाट्सएप की दुनिया में, और जहां मैं देख रहा हूं, तो ये कोई और आमिर नजीर है, उनका जिल और बुरूज है, वो आमिर अच्छा। नजीर नहीं है जी। अच्छा, फिर तो सुनने वाली बात होगी। यानी वो तो उन हमेशा पागलों एक जैसे रहते हैं। उन पागलों के साथ पागल ही बना हुआ है, आप जाकर शोर देख लें, वे सुन लो, वे, बस ये क्या तरीका है, ये भाई दफा करो, अगर वो गुफ्तगू करना नहीं चाहते अपने गले को, अपने आप को इस उम्र के स्टेज पे, डॉक्टर क्या साहब भी ब्राड बंद करके चले हो तो सारे हाँ, चले चले। आप जाकर चले सही आओ क्योंकि चलते देख तो और यार मुझे बिस्तर से उठना पड़ेगा। आप ढूंढे ज़रा। अच्छा देखें, मैं आपको ना 2 आयतें देता हूँ, ये आपने ना दोनों पढ़नी है। एक तो आपने उबैद भाई जो बताई थी कि हर जो है वो नफ्स ने मौत का जायका चखना है, ठीक है। चलें उस पर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जी उनको आना है, अभी तक आया नहीं है, ठीक है, ये जो है वो बात हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। अब आप पहले देखिएगा सूरह माइदा, आयत नंबर है 75, ठीक है। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाता है मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, ठीक है, व उम्मुहु सदीक़ा, ठीक है। अब आप इस आयत को अगर पढ़ें तो शुरू में है मसीह इब्न मरियम सिर्फ एक रसूल है, कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, ठीक है। ये जो वर्डिंग है ये आपने याद रखनी है, कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, इसमें ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं आएगा जो दूसरी आयत में आपको दूंगा। प्लस इसमें आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये बनता है कि आपसे पहले जितने रसूल हैं वो सब गुजर चुके हैं, ठीक है। गुजर चुके क्या हो गया, मतलब वफ़ात पा चुके हैं। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है और उसकी माँ सदीका थी, ठीक है, थी मतलब पास्ट की बात हो रही है, और वो दोनों खाना खाया करते थे, मतलब अब नहीं खाते। और फिर अल्लाह ताला कुरान करीम में ही फरमाता है कि हमने अम्बिया को ऐसा जिस्म अता नहीं किया कि वो खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सके, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने दोनों के बारे में पास्ट की बात की है कि उसकी माँ सदीका थी, मतलब हज़रत मरियम की बात हो रही है, मतलब अब नहीं है वो ज़िंदा, वफ़ात पा गई है ना, तभी थी की बात हो रही है। अदरवाइज़ तो आप ये कहेंगे कि इसका मतलब है अब सदीक नहीं रही वो, या वो सदीका नहीं रही, तो ऑब्वियसली उनकी वफ़ात की यहाँ पे जिक्र है। और फिर अल्लाह ताला आगे दोनों को एक ही कैटेगरी में रख के फरमा रहा है कि वो दोनों खाना खाया करते थे, मतलब अब नहीं खाते। तो हज़रत मरियम किस वजह से खाना नहीं खाती, क्यों, क्योंकि वो वफ़ात पा गई हैं। ऑब्वियसली अल्लाह ताला सेम कैटेगरी में दोनों को रख के फरमा रहा है कि वो भी अब खाना नहीं खाते, मतलब वो भी वफ़ात पा गए हैं। ये होगी पहली दलील। अब आप चले जाएँ सूरह आल इमरान आयत नंबर 144, ठीक है। अब यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो बारे में बात हो रही है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, ठीक है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिर्फ एक रसूल हैं, कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, कि आपसे पहले जितने रसूल हैं वो वफ़ात पा चुके हैं या गुजर चुके हैं, ठीक है। आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, फ़इम माता औ कुतिला, किधर गया यार, आओ कोतिलन कलब तो हाँ एक सेकंड, मेरा वो ना माउस उधर चला गया था, हाँ जी। अब अल्लाह ताला इसमें यहाँ पे क्या फरमा रहा है, देखो आपसे पहले जितने रसूल हैं वो गुजर चुके हैं, मतलब वफ़ात पा चुके हैं, उसमें हज़रत ईसा भी आते हैं, ठीक है। फिर अल्लाह ताला आगे क्या बता रहा है, वफ़ात पाने के या गुजरने का मतलब भी अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि कैसे होता है, या तो अगर वो वफ़ात पा जाए या कत्ल हो जाए तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल भेजोगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने गुजरने का आगे मतलब भी बता दिया कि गुजरते कैसे हैं, या तो वफ़ात पा जाते हैं तबई, या जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो उसका जिक्र हो रहा है। अब जहाँ तक ये अकीदा है कि वो ज़िंदा जिस्म समेत आसमान पे चले गए, ठीक है, तो कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं आता कुरान करीम में। अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, एक मुफ्ती साहब थे, उनसे आपने जब पूछा है